Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 2 of Stuti Speaks. So as you already know, अगर आपने कोई पहले podcast सुना है that this season is all about my guest. So today I have a very special guest with me whose name is Gorangi. So how I met Gorangi is a very detailed story, but मैं बहुत ज़्यादा detail पे नहीं जाऊँगी. So I was going through my awakening process, and while I was connected to the groups where we had similar people, I connected Gorangi, and we chatted like thoda sa once a while. And but later on, when I started following her, I started seeing her journey of awakening, her journey of music, and the way she used to share like the thoughts, the things, and I mean, I started loving it. So I thought, why not to ask her for a podcast? And I'm really blessed that she said yes and agreed. So I truly love what you do on Instagram, and I'll be sharing all your Instagram details, obviously, at the end of the podcast and in the marketing as well. So over to you, Gorangi. Can you explain like your journey or give your intro, like abhi currently kya kar rahe ho, and then we can start from there. Okay, thank you so much, Tuti Didi. Um, पहले तो thank you so much for inviting me, and I really feel so good to be here with you. Basically, myself Gaurangi, and I am a student. I am doing my graduation right now, and along with that, I am following my passion of singing. Uh, yeah, I sing. I also do poetries and all sometimes. Yeah, my basic thing is singing, and that's it about me. Not much. So कैसे I mean I'm seeing you like on the Instagram and the creation journey. So how the thing started coming in? थोड़ा सा background दे दो. And in case you want to Okay, pitch in okay. about how it started or maybe your awakening, I'm not sure how much people are aware of spiritual awakening, but that's completely fine. We can still talk about it. Yeah, So yes, you yes. never know who just clicked that right. So yeah, go ahead. Okay. When we talk about like my music journey, ये तो like बहुत सालों से है. मतलब मैं जब मे बी मैं किंडर गार्डन में थी तब से मैं कर रही हूँ. एंड उस टाइम मेरी पापा एक्चुअली माय फादर वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, तो उन्होंने मुझे म्यूजिक पे लाइक क्लासिकल म्यूजिक सिखाया था. ठीक है, तो मैं तब से सीख रही हूँ. और मैंने बैचलर्स किया है म्यूजिक में. बैचलर्स किया जब मैं क्लास 7th में थी, तब मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया. तो मैं तब से कर रही हूँ, बट बीच में लाइक बहुत साल आफ्टर माय 7th बहुत साल हो गया था. लाइफ में एक आता है ना, लाइफ में एक पॉइंट व्हेन वी जस्ट हम छोड़ देते हैं अपने किसी चीज को. एंड तो मैंने छोड़ दिया था कंप्लीटली म्यूजिक. आई मतलब जब मैं 11th 12th में थी उसके बाद भी तो कंप्लीट म्यूजिक छोड़ दिया था. एंड आई वॉज हैविंग सम बैड फेज इन माई लाइफ ऑल्सो, क्योंकि हम होते हैं ना, हम वी आर व्हेन वी आर इन अ जर्नी ऑफ लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हमारी होती है, उससे पहले हम एक बहुत बुरे स्टेट में होते हैं. हमारा हम छोड़ देते हैं सब कुछ. तो एक्चुअली ये दोनों का एक कनेक्शन है, म्यूजिक एंड स्पिरिचुअल जर्नी का एक कनेक्शन है मेरे लाइफ में. तो व्हेन आई गॉट लाइक स्पिरिचुअली अवेकन, तो मैंने फिर म्यूजिक तब फिर से स्टार्ट किया. ओके, तो फिर से होता है ना कि अंदर से आता है. मैंने अचानक से फिर से आई इतने सालों बाद मैंने अपना हारमोनियम लाइक आई टच माय हारमोनियम एंड आई स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक वंस अगेन. तो इट वाज अ लाइक थिंग, मतलब जो अवेकनिंग ने मुझसे करवाया, जो मैंने बचपन में करके छोड़ दिया था. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोशल मीडिया में मैं आई, तो मैंने ये सोचा कि चलो लेट मी शेयर माय म्यूजिक इन सोशल मीडिया. तो फिर क्योंकि मैं बहुत शाई थी बचपन से, मुझे बिल्कुल भी डर लगता था मैं स्टेज पे या कहीं पे भी गाना गाना, और मुझे ऐसा लगता था कि आई सिंग वेरी बैड. मुझे ऐसा लगने लगा था. आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट माई वॉइस. तो मैं इसलिए मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के सामने गाऊं, कुछ भी बोलूं, बोलने तक का कॉन्फिडेंस नहीं था. तो फिर मैंने स्टार्ट किया डर डर के कि चलो लेट्स ट्राई इट. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं करती गई. फिर मैंने सोशल मीडिया में करना स्टार्ट किया, एंड उसके बाद जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मुझे ना बहुत ज्यादा फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया. और आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है कि मुझे कहीं पे भी कोई बोलता है कि कुछ गा के सुनाओ, तो मैं गा सकती हूँ. लाइक वो चीज इट वॉज अ जर्नी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन तब से अब तक.
And for the context of listener, I would want to term it like there's a term before your awakening happens. There's a period which is known as dark night of soul. So जो एग्जैक्टली। होता है, हाँ। and अगर कोई इस चीज को अभी understand नहीं कर पा रहा, that is completely, maybe you are here because you need हम्म। to understand it, और शायद कभी ना कभी लाइफ में you will be able to understand it. So that period comes, and when you get over that period, और उस period के बीच में ही you get in touch with your gifts, जो आपके बहुत कोर बेसिक गिफ्ट्स होते हैं. किसी का सिंगिंग होता है, किसी का डांसिंग होता है, किसी का बातें करना होता है. आई ऑल्सो डिड पॉडकास्टिंग, लाइक मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी भी आफ्टर माई डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हुई, बिकॉज आई गॉट टू नो कि मेरे को माई पैशनेट इज टॉकिंग एंड लर्निंग फ्रॉम पीपल, और मुझे बहुत पसंद है टू मोटिवेट, टू इंस्पायर, टू हेल्प पीपल. सो आई थिंक हाँ, हर किसी का कुछ ना कोई गिफ्ट होता है विच अनलॉक्स आफ्टर देयर डार्क नाइट ऑफ सोल. सो आई थिंक yours unlocked after that. हाँ। And music पे भी हम आएंगे, maybe would love to listen something from you, but yeah, that would be towards the end. तो अभी के लिए you are pursuing it like side by side as a passion only, और अभी आने के लिए you have not doing it professionally? No. या बट मैंने बैचलर्स करके रखा है एंड आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग मास्टर्स इन म्यूजिक टू, लेकिन अच्छा. वही मतलब अभी थोड़ा सा हैक्टिक हो रहा है, बट आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड ऑल मे बी आई विल डू दैट आल्सो, स्टडीज के साथ ही मतलब. तो okay, let's start something from here only. We were talking about Dark Night of Soul. We were talking about can you get your gifts back. Let's talk about how these gifts help us to evolve, and how these gifts help people around us. Like किसी ना किसी वे में obviously करते हैं, right? So can you explain it a bit, like how music started helping you? Basically healing शुरू होती है इससे, right? Our healing journey starts from here. So कैसे you felt, like how you want to take that forward, like कैसे हुआ ये सब? बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम जब उस पेन से गुजर रहे होते हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करती है, उस पेन से लाइक व्हेन आई यूज्ड टू फील दैट पेन, जब मैं म्यूजिक से कनेक्ट हो जाती थी दैट वेरी मोमेंट, तो मैं ना उस पेन को लाइक द पेन गेट्स हील्ड, तो उस तरीके से ना बहुत हील होता था. और जो एनर्जी जहाँ हम पेन को मतलब उस एनर्जी को जो म्यूजिक पे लगा देती थी ना एक प्रोडक्टिव चीज पे, तो दैट गेट्स हील्ड. और साथ में खुद के साथ साथ ना आई यूज्ड टू रियलाइज कि दूसरों को भी दिस वे वी कैन हील कि म्यूजिक से, क्योंकि म्यूजिक इज अ लाइक म्यूजिक तो बहुत अच्छा चीज है फॉर हीलिंग. एंड अभी भी जब whenever I feel bad, I feel something like I feel my energy getting down, तो मैं म्यूजिक गाना गाती हूँ. I don't know how, but जब मैं गाती हूँ ना मेरी ना सारी जो डाउन एनर्जी होती है वो सारी मतलब हाई हो जाती है, एंड आई मतलब एक सेकंड में मैं अच्छा फील करने लग जाती हूँ. तो And मैं ऐसी for happy हो also like music is the easiest way to connect to higher energies, right? जाती. People Yeah, don't know it, and obviously that's why we yeah. get messages and guidance via songs. That's for सबसे music. ज़्यादा people who are in journey, they know that they get the maximum guidance via the songs and the music, because वो easiest way है to connect to the higher energies. And कर भी वही लोग पाते हैं. Music is the highest form where you can connect to God or divine. So I'm sure मुझे I can understand कि you किस level से you must be dealing with. So that's a, and उसके अलावा I know you share these kind of छोटा छोटा सा clips on your content creation about anything positive and motivating. तो वो कैसे शुरू हुआ? How did that journey started? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं ना ऐसे लोगों को कभी कभार समवन मेरे फ्रेंड्स हो गए, कोई भी किसी को भी कुछ चाहिए होता मतलब एडवाइस ही हो क्या कुछ भी, तो आई यूज्ड टू सेंड देम वाया लाइक वॉइस मैसेजेस, वॉइस नोट्स. तो मुझे बोलते थे मेरे फ्रेंड्स की तुम्हारी वॉइस सुन के ना वी गेट हील्ड, मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कितना भी हम दुखी ना क्यों ना मतलब वर्ड्स पे जाते नहीं, मतलब दे से कि तुम्हारी वॉइस ही मतलब इट मेक्स अस Healing फील है. गुड. तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं बनाती हूँ छोटा छोटा. पहले मैंने पोएट्री से स्टार्ट किया था. पोएट्री मतलब दूसरों के लिखे हुए पोएट्रीज मैं रिसाइट करती थी बस अपने वॉइस में, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा. उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ मोटिवेटिंग अपने मतलब अपना बना के बोलती हूँ, तो मैंने वैसे बना के बोलना स्टार्ट किया. और फिर मेरे बहुत फ्रेंड से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मतलब ऐसा हो जाता था, कभी कभार होता है ना कि हमारे लिए चीजें चैनल होके आती है, तो आई बिकम अ चैनल फॉर मेनी पीपल. लाइक बोलते हैं कि मैं अभी यही सोच रही थी, यही प्रॉब्लम से डील कर रही थी, तुमने वीडियो बना दिया एंड यू सेंट मी. तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि चलो लेट्स ट्राई, कि लोगों को अच्छा लग रहा है. तो उसके बाद पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, लोगों की मदद होने लगी. तो इसीलिए इस तरीके से मैं जब भी आता है कुछ भी दिमाग में छोटा सा थॉट आता है मैं लिख डालती हूँ, फिर मैं उसको बोलती हूँ
अपने वॉइस में, और उसी तरीके से किसी ना किसी की तो मदद मतलब हो ही हो जाती ही है फिर। जाती है. And whatever coming is to you is a download. That's what we say. कि Yeah, it just directly comes from divine, and you have to, anyways yeah, you have to execute it, because अगर नहीं करोगे तो वो दिमाग में चलता रहता है. चलते And you have to हो। फिर खुद ही परेशान होते रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता हाँ, है you have been pushed to do this. So that's what is called download, because वो आपको instantly आ जाता है. And you have been my channel for sure, because I was healed when I was, because उस time I was very new to this awakening, and I was going through a lot when I saw your, like, these things coming in. And you were my channel, like, for the longest time I used to watch your videos like very regularly. तो वो होता है, and a lot of healing happened, so thank you and super grateful for that. But yeah, I can understand and relate to whole different level कि अगर आपका डाउनलोड पे आपने एक्ट नहीं किया तो you'll be नहीं haunted. चलता रहता है आपको यहाँ रात तक इतना हॉन्ट हो जाओगे कि आपको पे। वो हाँ, निकालना पड़ेगा. इधर यू नीड टू पेन और पेपर लिख के कहीं भी. हम्म, बट देन वही है, जब डाउनलोड आने लग जाते तो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो जितने लोगों तक पहुंचे उतने लोगों तक जल्दी पहुंचे. अदरवाइज इट विल गेट स्टक. ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग. एनीवेज, हाँ, एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड टू, आई मीन बहुत ही ज्यादा बड़ी बहुत ब्लेसिंग है. ज्यादा मेरा बहुत ग्रेट। ज्यादा. हाँ, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. But how about, like, abhi ke liye, how are you thinking to go ahead further in your life? Do you have any download, या फिर आ गया है, मतलब पर्पस की क्लैरिटी बिल्कुल मिल चुकी है, या फिर अभी भी और इन प्रोसेस के, मुझे अभी भी देखना है व्हाट्स माय सोल पर्पस, व्हाट्स माय लाइफ पर्पस, अभी भी आर यू स्टिल स्ट्रगलिंग, और यू आर गोइंग विद द फ्लो? हाँ, आई एम गोइंग विद द फ्लो। एक्चुअली मुझे अभी ये पता चल चुका है कि आई हैव समथिंग टू डू विद माय वॉइस, कि मुझे बोलना है एंड मुझे सिंगिंग करना है, तो इतना तो मैं क्लियर हो चुकी हूँ, बट कैसे करना है वो विद टाइम में भी और मुझे क्लियर होगा। तो देखती हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग समथिंग दैट जो मेरी वॉइस को, मेरी स्पीकिंग उसको और एनहेंस करे, लाइक रेडियो वगैरह में आई एम थिंकिंग ऑफ ट्राइंग इन फ्यूचर। बट वही बाकी मैं अपनी तरीके से ही करती रहूंगी, जैसे अभी मुझे कुछ भी लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, आई स्पीक, और मुझे ये गाना गाना चाहिए, आई सिंग, तो उस तरीके से। बट हाँ, वॉइस से ही कुछ करना है, दैट आई एम श्योर नाउ। Sure, but उससे तुम मुझसे बैठे बैठे, I think I've got a confirmation as well. First of all, in case you need help, any help regarding the radio, do let me know. I had my first podcast with the person who is an HR in 104 FM, so you can go check out that and talk to that person. Also, I can help you in case I have more, because now I'm doing podcasting, so I have gotten contacts for people who are RJ. So, agar if you need help. Second of all, when you said voice, I suddenly came into throat chakra wala feeling aa gaya, and पीछे you have blue on your parda. So या, I think everything just came in sync. एवरीथिंग So कनेक्ट्स, या। connects. So I think कुछ ना कुछ तो for sure होगा ही. तो हाँ, let's consider that as sign. तो वो तो confirmation तो हो ही गई mostly. So that's really great. That's really हाँ, great. Or you have, like, anything more you want to share? कुछ भी insights related to music? Anything you want to share about your journey, or anything you want to share about your struggle or challenges, like which you think people can be inspired कि हाँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो? हाँ। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लाइक माय थ्रोट चक्रा वाज टोटली ब्लॉक्ड बचपन से। मैं कुछ भी बोल तक नहीं पाती थी। टुडे आई एम टॉकिंग विथ यू, मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी। आई यूज्ड टू गेट सो नर्वस। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, लाइक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैं मतलब होता है ना कि मुझे स्कूल वगैरह में बोलती थी तो मुझे बोलना, मतलब लोग टीचर्स को बोलना पड़ता था कि तुम इतना नर्वस क्यों होती हो, लाइक मुझ में बहुत दर्द था। तो कभी कभार क्या होता है ना, जो चीज हम हमारे कंफर्ट जोन से मतलब बाहर होता है, हमको वही करना चाहिए। वही मतलब ऐसा ऐसा एग्जांपल दूंगी कि छोटा सा एग्जांपल, मुझे लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेले कहीं ट्रैवल करके जाना, ये सबसे लाइक मुझे डर लगता था। डर भी लगना, और साथ में मैं कंफर्टेबल नहीं थी कभी भी बचपन से, क्योंकि मैं लाइक बचपन से कहीं भी जाती, कैसे भी जाती, अपने फादर के साथ ही हर जगह जाती, मतलब ऐसा था मेरा। तो मुझे कभी वो नहीं था कि मैं कैसे करूंगी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, जिस चीज से मुझे डर लगता है मैं वही जबरदस्ती करती हूँ। तो मैंने ये किया है अपने साथ। तो मैं क्या करने लगी कि मैं अकेले ट्रैवल करने लगी, अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने लगी, कि अकेले रास्ता क्रॉस करने लगी। मतलब मैं ऐसी थी ना, मुझे एंग्जाइटी थी बेसिकली बचपन से। तो एंग्जाइटी की वजह से ना, मैं छोटा छोटा जो काम होता है ना इंसान का, हर छोटा 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 टास्क, वो भी मैं स्ट्रगल करती थी मतलब करने के लिए, ड्यू टू एंग्जाइटी। तो वो लाइक मैंने करना स्टार्ट किया कि जो मुझे तकलीफ होती है ना, मैं वही मैंने किया। एक बार डर लगा, दो बार लगा, बहुत बार लगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
ठीक हो गया। अभी लाइक आई ट्रैवल एवरी डे, मैं ट्रैवल करती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अकेले, तो अभी मेरे लिए इजी हो गया। लाइक इट्स नॉट अ बिग थिंग। मतलब पहले मैं सोचती भी थी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। मतलब छोटी छोटी चीजें, यू विल गेट शॉक, छोटी छोटी चीजों से। मैं गाड़ी में भी ट्रैवल करती थी तो मुझे डर लगता था कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी गाड़ी की। मतलब इतना ज्यादा मैं एंग्जाइटी में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक एंग्शियस रहती थी, मतलब हर वक्त। तो वहां से लेकर अगर मैं यहाँ तक आगे कॉन्फिडेंटली आज बोल भी पा रही हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है ये चीज, अगर इफ यू हैव द थिंग कि आप उसको फाइट बैक करोगे। उस ये क्या होता है ना, फियर, फियर इज अ लिमिटेशन जो हम खुद को देके रखते हैं। उसको एक बार हम साबित कर देना कि ये झूठ है, तो फिर वी कैन ओवरकम। और ये ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल फियरलेस बन चुकी, अभी भी बहुत डर है मेरे अंदर। इट्स अ जर्नी ना, सच कोई को में। ऐसा, इट्स अ जर्नी। छोटा छोटी मोटी चीजें अभी भी है मेरे साथ, और वो भी शायद विद टाइम हो जाएंगी, विद ऐसे ही बट मतलब कोशिश बट करती इतना रहूंगी। इतना दूर तक आना, लाइक बीइंग सो इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन, देन कमिंग आउट ऑन सोशल मीडिया, एंड दैट टू फोटो डालना इज स्टिल डिफरेंट, वीडियो बना के डालना इज इवन मोर डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर आउट देयर एंड यू आर पीपल, आई मीन थोड़ा थोड़ा ज्यादा वनरेबल कंडीशन में होते हो तुम व्हेन, एंड ऑब्वियसली पीपल आर नॉट इजी ऑन मीडिया यार, दे आर लाइक हेट कमेंट्स आने में 2 मिनट लगता है, क्या कर रही है ये लड़की, पागल है, कुछ भी, मतलब आई मीन, एंड देन जो बंदा पहले ही एंक्शियस हो और उसको ऐसे एक दो भी कुछ आ जाए तो उसे और ज्यादा लगने लगे। बट कमिंग आउट देयर इज लाइक बिग थिंग, एंड दैट too, especially in young age like you. I'm sure you're very young, you're still graduating, so हाँ, वही है, I mean if you can do it, anybody, I mean anybody can do anything. It's all about overcoming your fears, right? So ठीक है, I think amazingly explained everything. थोड़ा सा let's touch on the music part. थोड़ा सा, you want to sing something and then we'll move forward. Yeah, go ahead and sing something. ओके। सो मैं एक छोटा सा लता मंगेशकर जी का छोटा सा एक गाऊंगी पार्ट। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। Wow, it just touched my heart, and this is one of my favorite songs. I truly, मतलब मुझे बहुत पसंद है गाना. This is very close to my heart since forever, and you made my day. I mean, this is really amazing, and your voice is actually healing. I mean, आजकल मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ. I feel so much of peace in their voice. I'm sure बहुत लोगों ने बोला होगा already. You have हाँ, told that your voice, but there is a peaceful and serenity as well in that, along with the healing energy. There is a lot to it. And before we like formally end this, do you want to say something, share something with my listeners, anything motivating or inspirational you want to share? Please do that. तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, लाइक अबाउट लाइक मैं अपने अपने लाइफ के उससे बोल रही हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, इट मे बी एनीथिंग, ओके। जब दिल बोल रहा है ना कि ये चीज करनी चाहिए, तो बाकी चीजें जो होती है ना कि लोग क्या बोलेंगे, ये वो, अपना अंदर का जो एक इनसिक्योरिटी अपने अंदर की मैं अच्छी नहीं हूँ, ये सब ना सिर्फ एक वो होती है ना, जैसे एक मतलब बलून होता है ना, बलून के अंदर क्या होता है, हवाई तो होती है, कुछ तो नहीं होता है ना। तो वो वैसी ही है, मतलब यू जस्ट हैव टू, लाइक एक बलून जैसी है वो चीज है, यू विल हैव टू जस्ट उसको
पिन से वो करके उसको बस हटा देना है, कुछ नहीं होती ये चीजें। इफ यू हैव द थिंग, इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम योर हार्ट, तो आप जरूर कर सकते हो उस चीज को। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज को करने से डर लगता है ना, वो क्या करो, वही किया करो, क्योंकि डर को इसी तरह हटा सकते हैं, अदरवाइज यू कांट। और कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, ट्रॉमा हो, इस चीज को भी हील करने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता है कि यू जस्ट रन अवे फ्रॉम इट ना। रनिंग अवे इज नॉट, you'll have to face it, you'll have to like you'll have to express it. तो म्यूजिक was always a way for me to express my pain. तो एक्सप्रेस करना, इस चीज को फेस करना बहुत जरूरी है। एंड कोई भी इंसान कंप्लीटली ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत मतलब खुश है। हर किसी के लाइफ में डेज तो आता है ना कि बैड डेज और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं सोचना, मतलब मैं खुद करती थी ऐसा, मैं बहुत बुरा फील करती थी कि मैं तो अभी भी हील नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। बट आई यूज्ड टू फॉरगेट, ये भूल जाती थी कि मैं कहाँ से आई हूँ। यू नो, हमेशा नेवर लुक, आगे मत देखा करो कि कितनी लंबी मेरी जर्नी है। लुक बैकवर्ड्स कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो देन यू विल फील मोटिवेटेड एवरी डे। ये मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज रियली नाइस। एक तो डर के आगे हमेशा जीत है, दैट्स क्लीशे बट दैट्स द ट्रूथ। एंड ऑब्वियसली यार वही है कि वी शुड ऑलवेज कंपेयर के हमने व्हाट वी ओवरकेम, वेयर वी वर लाइक 5 years बैक, वेयर वी वर 10 years बैक, अब हमने क्या कर लिया। बिकॉज अगर आगे देखेंगे तो लगेगा कुछ भी नहीं करा, और पीछे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कितना कुछ करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे तो अभी पता नहीं क्या क्या करना है। लाइक miles to go before we sleep, a long way ahead. So thank you so much, Gorangi, for coming on the show. I'm really blessed to have you today. And anyways, your voice has a lot of healing energy. I hope जिसने भी सुना है, they have gotten a lot of strength, motivation, and inspiration. So thank you everyone who listened to us. I'll be providing details of Gorangi wherever I'll be publishing, like marketing it. So thank you so much, everyone. Stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I'll see you another one. Take care. Bye.